Dear viewers, this is not a political content. This is just educational and history based content for students. Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10th, Lesson number 2, Part 1. Today our topic is topic number 5, Ziaul Haq's era. Questions which we are covered in this topic. Question number 10, 11. Question number 10 is, what are the important causes of martial law 1977? Question number 11, explain the efforts made for Islamization between 1977 to 88, or major aspects of the Islamization process during 1977 to 88. Introduction. Muhammad Ziaul Haq was born on 12 August 1924. He was a Pakistani four-star general who became the sixth president of Pakistan after declaring martial law in 1977. He served as the head of state from 1978 until his death in 1988. He remains the country's longest serving head of Pakistan. He was fighting as a tank commander in the Indo-Pakistani War of 1965. In 1970, he led a military training mission to Jordan. Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto appointed Zia Chief of Army Staff in 1976. Background of martial law in 1977. On 8 January 1977, a large number of opposition political parties grouped to form the Pakistan National Alliance. भुट्टो जो है उसने फ्रेश इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए और पीएनए जो है उसने पार्टिसिपेट किया इन इलेक्शंस के अंदर मुकम्मल तौर पे जो पीएनए है उसे शिकस्त हासिल हुई लेकिन उसने रिजल्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और धांधली का जो है वो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया. They proceeded to boycott the provisional elections. Despite this, there was a high voter turnout in the national elections. उन नेशनल इलेक्शंस जो थे उनके अंदर हाई वोटर टर्न आउट मिला था लेकिन प्रोविजनल इलेक्शंस जो हैं उनके अंदर उन्हें वो जो टर्न आउट है वो हासिल नहीं हो सका. इस वजह से उन्होंने बाइकआउट कर दिया और the PNA declared the newly elected Bhutto government as a illegal. Our next point is Nizami Mustafa movement. Nizami Mustafa movement, the system of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nine-party popular movement in Pakistan began by the Jamaat-e-Islami in 1977 to overthrow the secular government of Zulfikar Ali Bhutto. जमात इस्लामी बेसिकली चाहती थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको वो सेकुलर कहते थे या सेकुलर निज़ामी हुकूमत का मालिक कहते थे उस हुकूमत को ख़त्म करके इस्लामिक सिस्टम जो है या इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर राइज करना चाहते थे या पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक सिस्टम लेके आना चाहते थे. The Pakistan National Alliance manifesto was to implementation of Islam and its primary election slogan. और उन्होंने बाकायदा प्रॉमिस किया कि वो जब हुकूमत में आएंगे तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा जो है उसको लेके आएंगे शरीयत से लिंक जो लॉज हैं उनको जो है कंट्री के अंदर राइज करेंगे. नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो थे उनके लीडर्स जो थे वो उनके साथ जो है मिले हुए थे जो कि बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पसंद नहीं करते थे. द मूवमेंट वाज इक्विप्ड आफ्टर द मिलिट्री कोप ऑफ ज़ियाउल हक और यही मूवमेंट जो है उसके बाद ज़ियाउल हक जो है उसने आगे चलाई. Our next point is Bhutto invited NA for negotiations. Bhutto opened negotiations with the PNA leaders but whether or not it would have been signed by all PNA parties
or by Bhutto remains open to speculation. In anti-Bhutto bloc, the alliance seemed to be effective when tapping a wave to remove Bhutto from government. जब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लगी तो भुट्टो के जो सबसे करीबी दोस्त थे डॉक्टर मुबशर हसन उन्होंने कोशिश की कि भुट्टो और जो अलायंस है उसके दरमियान इत्तेहाद कराया जा सके उनके दरमियान कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके और दूसरी तरफ डॉक्टर हसन जो उन्होंने भुट्टो को एडवाइस भी किया कि वो ताकत के ज़ोर पर ताकत से जो है वो अलायंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें इसके साथ साथ जब उन्होंने पीएनए से बातचीत की तो डॉक्टर हसन जो है आस्ता आस्ता नाकाम होना शुरू हो गए क्योंकि पीएनए के मेम्बरान जो थे वो समझ चुके थे कि इसके पीछे भुट्टो का दिमाग है और उन्होंने एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया और फिर जब दोबारा कोशिश की गई और एन agreement was finally reached in June 1977 and Bhutto was to sign it on July 5th July. Though despite the interest of the negotiation team, other PNA leaders had questions about the agreement. और आखिरकार जो जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसने फिर इस इत्तेहाद को इस अलायंस को अपनी ताकत के जोर पर ख़त्म करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज जो हैं उनका सहारा लिया और कहा जाता है कि यही एक अहम काज थी जिसकी वजह से भुट्टो जो है उसे हुकूमत से निकाल दिया गया उसे हुकूमत छोड़नी पड़ी और उसे जेल में डाल दिया गया Enforcement of martial law. The army chief overthrew the Bhutto government and declared the martial law on 5th July 1977. ज़ियाउल हक जो है उसने जो सेकुलर गवर्नमेंट थी और यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया और जुल्फ़कार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया गया उनका ट्रायल दिया गया उसके बाद जो ज़ियाउल हक है उन्होंने पूरी सपोर्ट जो है कंजर्वेटिव्स और रिलीजियस ग्रुप्स जो थे उनको दी The socialist and communist and secular fronts were suppressed, destabilized, destroyed, and completely disabled by General Ziaul Haq and his supported Islamic friends. और मुकम्मल तौर पे जो है उन्होंने जो इस्लाम को जो सपोर्ट कर रहे थे रिलीजियस ग्रुप से कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो थे उनको सपोर्ट किया और मुकम्मल तौर से जो सेकुलर ग्रुप के जो लोग थे उनको जो है दबा दिया गया Ziaul Haq's government. When Ziaul Haq took the power in his hands, there was a popular conception that every government paid only lip service to Islam and no sincere effort was ever made in this direction. और इसी वजह से रूलिंग क्लास जो थी वो मुकम्मल तौर पर रेजिस्ट कर रही थी वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम जो है उसे मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए and General Zia was aware of such feelings, so he directed his attention to the taking of practical measures. Thus, the following few points can be enumerated in this regard. Like creation of favorable atmosphere, यानी ऐसी atmosphere कायम करना चाहिए उसने ताकि इस्लाम जो है उसको अच्छे से नाफिज किया जा सके उलमा इकराम जो है उनके साथ राब्ते जो है उनको बढ़ाया जो मीडिया थी उसके लिए रिफॉर्म्स जो हैं वो सेट की एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंग बनाई इसके साथ साथ दूध ऑर्डिनेंस और शरीयत कोड्स वगैरह बनाई ताकि इस्लाम को प्रैक्टिकली जो है फॉलो किया जा सके प्रैक्टिकली जो है नाफिज किया जा सके यहाँ तक कि जो नेशनल लैंग्वेज है और नेशनल ड्रेस जो है उसे लैंग्वेज को बोलने पे जोर दिया गया और नेशनल ड्रेस जो है उसे पहनने पे जोर दिया गया और decisions about कादियानीज enforcement of Sharia Ordinance 1988 और कादियानी जो है उनके खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट जो है एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया 1988 के अंदर जिन्हें उन्हें जो है मुस्लिम जो है एक्सेप्ट करने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया गया Our next point is aspects, reforms, or features of the Islamization process during 1977 to 88. ये क्वेश्चन आपको एस्पेक्ट्स रिफॉर्म्स और फीचर्स तीनों सूरतों में आ सकता है और तीनों सूरतों में इसका जवाब एक ही होगा The major aspects, reforms, or features of Islamization process during 1977 to 88
are as under. First one is enforcement of Hudud. The Hudud Ordinance was issued on February 10, 1979, under which the offense against property, the rape, zina, and curse were considered heinous crimes and their punishment were imposed. यानी जो गुनौने जराइम हैं जिनका जिक्र किया गया है उनके लिए सख्त तरीन सजाएं जो हैं वो मुकर्रर की गई. Our next point is system of zakat. On June 20, 1980, few steps were taken to model the economic system on Islamic lines. For instance, the enforcement of zakat and ushur system. ज़ुकात जो थी वो एनुअली जो है काटी जाती थी सेविंग अकाउंट से और जीटीपीए फंड्स जो हैं जो जैसे ही रिसीव होते थे उनसे फर्स्ट रमज़ान को ये जो है ज़ुकात काट ली जाती थी. उसके अलावा उशर जो है वो उशर वाज कलेक्टेड फ्रॉम दोज लैंडलॉर्ड्स हु यील्ड्स एक्सीडेड 948 केजीज ऑफ व्हीट. और जो उशर है वो उन लैंडलॉर्ड से लिया जाता था और ये 1983 जो है उसमें जो है लागू किया गया था और ये टोटल अमाउंट जो थी उसका 10% जो है वो लिया जाता था. और इस काम के लिए बाकायदा तौर पे ज़कात कौंसल जो है वो बनाई गई और उसका काम था कि वो जो डिज़र्विंग लोग हैं जो नीडी लोग हैं उनको जो है वो ज़कात जो है डिस्ट्रीब्यूट करना. Elimination of interest. For the elimination of interest on 1st January 1981, the profit and loss sharing accounts were opened. All banks opened profit and loss sharing accounts and all savings accounts were converted into PLS accounts. इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम जो है उसको मुकम्मल तौर पर कायम करने की कोशिश की गई और उसके साथ साथ जो सूद का निज़ाम है उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई. इसके साथ साथ बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया और उसके साथ साथ लोन्स देने के लिए जो तरीक़ाकार है वो मुकर्रर किया गया और सूद कम जड़ से खात्मा करने की कोशिश की गई. Our next point is Shariat courts. Shariat benches in all high courts were established on 10th February 1979. To enforce Islamic criminal law, Sharia courts were set up which enjoyed the status of High Court. हाई कोर्ट के जजेस और उलमा इकराम जो थे इसके अंदर शामिल थे जो कि केसेस जो हैं उनको सुनते थे इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग. The Sharia bench of Supreme Court was the highest court for appeal regarding Islamic law. और इस कोर्ट का मकसद सिर्फ इस्लामिक लॉ जो है उनके ऊपर बहस करना था और उन्हें लागू करना था. इसके साथ साथ काजी कोर्ट्स वर मेड टू प्रोवाइड सिंपल एंड स्पीडी डिसीजंस. लेकिन जो ऑपोजिशन लॉयर्स हैं और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो थे उनकी वजह से ये जो है उस तरह से काम ना कर सकी जिस तरह से इनको काम करना चाहिए था. Our next point is compulsory education of Islamiyat. To create Islamic thinking in the students, General Zia ordered to review all the textbooks according to Islam and to the ideology of Pakistan. Islamiyat and Pakistan studies were made compulsory and were introduced in all sorts of educational institutions. इस्लामिक स्टडीज़ जो है और पाक स्टडीज़ जो है उसे लाजमी करार दे दिया गया तमाम क्लासेस के लिए और इसके साथ साथ पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसे इस्लाम के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की गई. Our next point is Ramadan Respect Ordinance. To enforce the respect for Ramadan, a special ordinance was released, जिसके मुताबिक खाना पीना पब्लिकली जो है वो सख्ती से जो है वो बैन था और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसे 3 माह की जो है वो सज़ा दी जाती थी और इसके साथ 500 रुपया जुर्माना उसे अदा करना होता था. Media broadcasted special program during Ramadan and all food markets were used to be shut down during the Ramadan.
Observation of Salat. Arrangements for observing Salat of Zohar in the government and also in the semi-government offices, schools and colleges was made. Salat committee was were constituted to motivate people for Salat. शुरू शुरू में तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जितने भी लोग थे वो बाकायदगी से जमात के साथ नमाज अदा करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो वो लोग इस नमाज का जो टाइम था उसको अपने पर्सनल कामों में इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से ये जो निज़ाम है ज़्यादा देर तक ना चल सका. Our next point is compulsory Arabic teaching. Arabic teaching was made compulsory from class 6 to 8. छठी से 8वीं जमात तक जो है अरबी की जो तालीम है उसको लाजमी करार दिया गया और उसके लिए बाकायदा स्टाफ जो है मुकर्रर किया गया स्कूलों के अंदर, ताकि वो बच्चों को जो अरबी है वो सिखा सकें. Our next point is establishment of Islamic International University. The Islamic University at Islamabad started functioning from 2nd January 1981. Which makes research in every field of Islamic law, especially fiqh और शरिया से related जो principles थे या disciplines थे उनको जानने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को जो है एस्टैब्लिश किया गया इस्लामाबाद के अंदर. Our next point is patronage of madaris. The religious institutions were officially patronized and its degrees were recognized by government. जितने भी मदारिस थे उन्हें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया, उन्हें दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया और उसके साथ साथ उन्हें एनुअली जो है अखराजात दिए जाते थे. उसके साथ साथ जो उसकी सनद थी जिसे दरस निज़ामी कहा जाता है उसको एमए की इक्विवेलेंट डिग्री जो है करार दिया गया. Our next point is reforms in electronic media. In 1979, government also introduced reforms in the electronic media. His first major step was that he introduced reforms in media, as media played an important role in creating favorable public opinion for a particular system. Promotion of music and dancing was banned and instead reformatory programs were introduced. Azan was aired at prayer time, Hajj rites were broadcast live on television, and Hajj sermon could also be heard on radio. इसी तरह अफ्तार के टाइम जो अजान का जब वक्त होता था तो टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको रोक दिया जाता था ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो आसानी से अपनी नमाज जो है उसको अदा कर सकें. इसके साथ साथ वल्गर किस्म के और ऑप्शंस किस्म के एड्स जो थे उन्हें मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, टेलीविज़न पे भी और न्यूज़पेपर पे भी. उसके साथ साथ दुपट्टा पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि तमाम फीमेल एंकर्स जो और एक्ट्रेस जो हैं वो दुपट्टा जो है वो लें. और इसके साथ साथ इन 1979 अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लॉ ऑफ किसास एंड दियात वर enforced in the country according to Islamic concepts. Our next point is revolution in judiciary. According to ordinance of 1979, some revolutions were also introduced in the judiciary. ड्रेस कोड्स जो थे जजेस के, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के ड्रेसेस जो जुडिशरी पहनती थी उसको चेंज करके उसकी जगह शलवार एंड शेरवानी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया. और माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप को जो है सर और मैडम की वर्ड से चेंज कर दिया गया. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल. Islamic Ideology Council was reorganized in the regime of General Ziaul Haq. ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो जजेस को दी गई और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है उसके मेंबर्स की तादाद को 20% जो है बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है उसका हिस्सा बन सकें.
Our next point is the setting up of a Shariat faculty. A Shariat faculty was set up in the Qaid-e-Azam University in Islamabad. इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है कायदे आजम यूनिवर्सिटी उसके अंदर फैकल्टी जो है शरीयत फैकल्टी जो है वो कायम की गई और उसके साथ साथ उनका काम था कि तालीम मुहैया करें हदीस फ़िक़्ह और इस्लामिक लॉ के ऊपर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं वो हदीस फ़िक़्ह और इस्लामिक लॉज जो उनको समझ सकें उनको जान सकें और उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें. End of Ziaul Haq's era. He ruled over the country for about 11 years from July 1977 to August 1988. General Ziaul Haq was killed in an air crash on 17 August 1988. Then the chairman of Senate Ghulam Ishaq Khan took over control as a caretaker president of Pakistan after the death of Ziaul Haq. Conclusion. General Zia is a controversial figure in the history of Pakistan. जिसे एलाइट क्लास जो है पसंद नहीं करती थी उसकी इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की जो पूरा प्रोसेस था उसकी वजह से और पॉलिटिकल उल्मा जो थे वो भी ज़िया को सपोर्ट तो करते थे लेकिन उसके साथ वो ये भी कहते थे कि ज़िया जो है उसका काम नहीं है मुल्क के अंदर इस्लामिक निज़ाम को जो है लाना बल्कि उस बंदे का काम है इस्लामिक निज़ाम जो है मुल्क के अंदर इन्फोर्स करना जो कि पावर में आए ज़िया के बाद ज़िया को चाहिए कि सिर्फ वो इलेक्शंस जो है वो करवाए और उसके बाद जो अपने तमाम इख्तियारात हैं एक आम जो पब्लिक पर्सन है उसको जो है दे दे ताकि वो जो है इस्लाम को जो है इन्फोर्स करे. आर्मी का जो ऑफिसर है उसका काम नहीं है उसकी जॉब नहीं है कि वो इस्लाम जो है उसको फॉलो करवाए कंट्री के अंदर. ये काम उल्मा का है और उसके साथ उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का है कि वो इस्लाम जो है मुल्क के अंदर नाफिज करे. Okay students, I hope you understood all the topics very well. Today our home task is learn the question number 10 and 11. Complete your home task on daily basis on time. Thank you.